Hello everyone, my name is Bishu and today we are going to dive into the world of cybersecurity, which has become a critical part of our daily lives. To begin with, let's understand what cybersecurity actually means. So, cybersecurity is the practice of protecting digital assets such as computers, servers, mobile devices, network, and data from malicious attack, unauthorized access, damage, or theft. In today's digital era, cybersecurity is essential for individual, organizations, and government to safeguard their information and system. सो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है अपने डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि कंप्यूटर, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डाटा। ओके। जो मैलिशियस अटैक, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज या थेफ्ट से बचाए जाते हैं। हमारे हर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट ऑपरेशंस आजकल डिजिटल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी अब ऑप्शनल नहीं है, बल्कि एक एसेंशियल चीज बन गई है। ओके। So, what is cybersecurity? Cybersecurity involves technology, process, and practice to protect network, device program, and data from attacks, damage और unauthorized access. साइबर सिक्योरिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट्स द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड प्रोग्राम फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। ये टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और प्रैक्टिसेस का सेट होता है जो नेटवर्क, डिवाइस, प्रोग्राम और डेटा को अटैक्स, डैमेज या अनऑथराइज से प्रोटेक्ट करता है। साइबर सिक्योरिटी इज एवरीथिंग फ्रॉम इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू डिफेंडिंग अगेंस्ट एडवांस साइबर अटैक्स जो नेशन स्टेट भी करते हैं। ओके। Now, looking to the core elements, refers to computer systems and network, while security means safeguarding these systems against threats and breach. So, साइबर ये टर्म कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से रिलेटेड सिस्टम्स को रेफर करता है, जबकि सिक्योरिटी इसका मतलब है इन सिस्टम्स को थ्रेट, ब्रीच और कॉम्प्रोमाइज से बचाना। साइबर सिक्योरिटी काफी तरीके से काम करता है। दोनों पर्सपेक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटजीज होती है। ओके। So strategies including preventive measures like firewalls and encryptions and reactive actions such as incident response and patching vulnerabilities. So preventive जैसे firewall, access control, encryptions और security होता है, और reactive incident response, forensics and vulnerabilities को पैच करना होता है। ओके। Why cyber security matters for individual? Okay. So, for individual, protecting identity. Individuals are digital entities vulnerable to identity theft through email, social media, and banking app. Okay. In financial security, cybersecurity helps prevent fraud and unauthorized transactions that can drain personal finances. And privacy protection, it safeguards personal data from surveillance and leaks such as phishing attacks mimicking bank communications. Okay. सो अब बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। आजकल हर पर्सन एक डिजिटल एंटिटी है। हमारे ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंकिंग एप्स और क्लाउड स्टोरेज से अटैकर्स काफी इजीली टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, पर्सनल आइडेंटिटी को थेफ्ट से बचाना, फाइनेंशियल अटैक को, फ्रॉड, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन से प्रोटेक्ट करना, प्राइवेसी को सर्विलेंस या डेटा लीक से बचाना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिशिंग इमेज जो बैंक की कम्युनिकेशंस को मिमिक करते हैं। ये ईमेल्स यूजर को ट्रिक करते हैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने के लिए, जिससे बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी इंडिविजुअल्स के लिए भी
मैटर करते हैं। एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, firstly, we look in protections. Okay. So ensure confidentiality and integrity of sensitive customers and internal data. Prevent unauthorized data alterations or theft. In brand reputations, data breach damage customers' trust and company image. Example, the 2017 Equifax breach exposed data over 140 million people. And in legal compliance, adhering to regulations like GDPR, HIPAA, and PCI DSS avoids costly fines. Cybersecurity is critical for meeting the legal requirements. Okay. सो अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। कंपनीज के पास सेंसिटिव कस्टमर्स डेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ऑपरेशनल सीक्रेट्स होते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे डेटा कॉन्फिडेंशली एंड इंटीग्रिटी की बात करें तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ताकि कस्टमर्स और इंटरनल डेटा ऑल्टर्ड या स्टोलेज ना हो। ब्रांड रिपुटेशन की बात करें, अगर डेटा ब्रीच होता है तो कस्टमर ट्रस्ट लूज हो जाता है। और लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें तो जीडीपीआर, HIPAA या PCI DSS जैसे लॉज की कंप्लायंस ना करने पर काफी फाइन्स लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2017 का इक्विफिक्स ब्रीच, जिसमें अटैकर ने ओवर 140 मिलियन इंडिविजुअल्स का डेटा एक्सेस किया, बस इसीलिए क्योंकि एक नॉन वर्नेबिलिटी को पैच नहीं किया गया था। इसका रिजल्ट था फाइनेंशियल लॉस और रेपुटेशंस का लॉन्ग टर्म डैमेज। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंस की। सो गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट नेशनल इट it is important for national security, like defense against cyber warfare and espionage targeting critical system. In infrastructure protections, prevent sabotage of essential service like power grids and communications. And in citizen data safety, protect sensitive public records from exposure or misuse. Okay. Example, the 2010 Stuxnet Stuxnet attack disrupted Iran's nuclear program by targeting industrial control systems. सो अब बात करते हैं गवर्नमेंट्स की। गवर्नमेंट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मैनेज करते हैं, जैसे पावर ग्रिड्स, मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशंस, लॉ इन्फॉर्मेंस और हेल्थ सिस्टम। गवर्नमेंट के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है, जैसे नेचुरल सिक्योरिटी सॉरी नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड करना, साइबर सिक्योरिटी वॉरफेयर और स्पॉनेज से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शंस की जरूरत होती है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन नेटवर्क को सैबोटेज होने से बचाना। सिटीजन्स डेटा सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेंसिटिव पब्लिक रिकॉर्ड्स को एक्सपोजर या मिसयूज से प्रोटेक्ट करना। एक एग्जांपल दूं तो 2010 का स्टक्सनेट अटैक, जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक माना जाता है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया गया था इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स को टारगेट करके। सो साइबर सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट के लिए। ओके, आगे चलते हैं। नाउ वी आर looking into the CIA trade core cyber security principle. Okay, so एक एक करके समझते हैं। Firstly is confidentiality. So confidentiality ensure that information is accessible only to authorized users through encryptions, access control, and authentications. Example: HTTP encrypts web traffic to protect login credential. सो अब चलिए हम साइबर सिक्योरिटी के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है CIA ट्रेड। ओके,
जो साइबर सिक्योरिटी के कोर प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। ये तीन कोर प्रिंसिपल होते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका मतलब होता है गोपनीयता। द सेकेंड इज इंटीग्रिटी, जिसकी जिसका मतलब होता है सततता। और द थर्ड इज अवेलेबिलिटी, ओके, जिसका हिंदी होता है उपलब्धता। ओके। हर सिक्योरिटी पॉलिसी, कंट्रोल और प्रैक्टिस इन प्रिंसिपल को मेंटेन करने के लिए होती है। ओके। सो सबसे पहले होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका मतलब होता है गोपनीयता। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जो ऑथराइज्ड है। इसका मेन गोल अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करना और डेटा को लीक होने से बचाना होता है। टेक्निक्स जो यूज होती है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, तो इसमें सबसे पहला टेक्निक होता है इंक्रिप्शंस। सो इंक्रिप्शंस डेटा को इनकोड करना ता, होता है, ताकि अनऑथराइज्ड रीडिंग ना हो सके। सेकंड जो मेथड होती है वो होती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके। यहाँ पर सेंसिटिव फाइल्स या डेटाबेस को एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना होता है। और तीसरा जो हमारे पास टेक्निक होती है वो होती है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। सो इसमें पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक्स और मल्टी फैक्टर्स ऑथेंटिकेशंस होते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, तो जब हम HTTPS, जो SSL और TLS यूज करते हैं, हम लोग HTTP का यूज तब करते हैं वेब ट्रैफिक इनक्रिप्ट होता है। अब हम लोग HTTP का यूज करते हैं, उससे वेब ट्रैफिक इनक्रिप्ट होता है, ताकि कोई ईवे ड्रॉपर्स आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स को ना देख सके। सेकेंड इज integrity. So integrity maintains accuracy and consistency of data, preventing unauthorized modifications. The techniques used in integrity is checksums, digital signatures, and versions control. Okay. So integrity का मतलब होता है सततता। इंटीग्रिटी का मतलब है डेटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। हम इंश्योर करते हैं कि डाटा मॉडिफाई ना हो, चाहे वो मैलिशियस हो या एक्सीडेंटल। या इंटीग्रिटी में जो टेक्निक्स यूज होती है, इसमें जो पहला टेक्निक्स हम कह सकते हैं जो यूज होता है वो होता है चेकसम्स एंड हैशेस। इसमें अनऑथराइज चेंजेस को डिटेक्ट किया जाता है। सेकंड होती है डिजिटल सिग्नेचर्स, जहां पर ओरिजिन और इंटीग्रिटी को वेरीफाई किया जाता है। और तीसरा जो होता है वो होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, जहां डेटा हिस्ट्री और चेंजेस को मेंटेन करना होता है। ओके। रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, तो जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो आपको SHA-2256 हैश दिया जाता है। आप डाउनलोड करने के बाद फाइल को हैश कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं, ताकि आप श्योर हो सके कि फाइल टेम्पर्ड नहीं हुई है। ओके। तीसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है, सॉरी, तीसरा जो प्रिंसिपल है, सो दैट इज बेसिकली अवेलेबिलिटी। ओके, जिसका मतलब होता है उपलब्धता। सो अवेलेबिलिटी इंश्योर ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड वाया redundancy, बैकअप्स एंड DDoS प्रोटेक्शंस। Cloud providers use distributed servers to maintain uptime. Okay. सो अवेलेबिलिटी इंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशंस और रिसोर्सेस अनऑथराइज्ड यूजर्स के लिए एक्सेसिबल हो जब जरूरत हो। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो सर्विस डिस्टरप्ट या डेटा लॉस हो सकता है। यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज होती है वो होती है रेडंडेंसी एंड फेल ओवर सिस्टम। ओके। ताकि अगर एक सिस्टम फेल हो तो दूसरा सिस्टम काम करे। रेगुलर डेटा बैकअप्स टेक्निक्स यूज होती है, जहां डेटा लॉस से बचने के लिए रेगुलर डेटा बैकअप्स का यूज किया जाता है। तीसरी टेक्निक जो यूज होती है दैट इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सो सर्विस को डाउन होने से बचाने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे AWS और Azure डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स यूज करते हैं, ताकि अगर एक डेटा सेंटर डाउन हो जाए तो भी आपका डेटा एक्सेसिबल रहे। ये था एक ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी।
ओके, हमने देखा कैसे हमारे पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और गवर्नमेंटल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है। अगले लेसन्स में हम इससे और गहराई से समझेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर इंसाइट इन द साइबर सिक्योरिटी ऑफ वर्ल्ड, into the world of cyber security. Sorry. Okay. Thank you.